Good morning, students. Once again, I am going to start this video. This is the second part of this poem, God Made the Country. So, in this video, we will do question answer of this poem. In my first video, I have already taught the poem. So, today, this video is only for the question answer. Where do you find health and virtue? B. Answer the following questions briefly. शॉर्ट में इसका आंसर देना है एक लाइन में, वन लाइनर क्वेश्चन. सो यू फाइंड हेल्थ एंड वर्चू इन द विलेजेज इन द कंट्री साइड. हेल्थ एंड वर्चू कहाँ मिलता है? तो देहात में मिलता है, गांव में मिलता है. वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स? सो यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स इन द कंट्री साइड इन द विलेजेज. यह भी गांव में मिलता है, देहात में मिलता है. व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेज इन द इवनिंग? द सोर्स ऑफ लाइट इन द विलेजेज इन द इवनिंग इज द मून. द मून विच इज इन द स्काई, दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन द विलेजेज. आज क्या है वो नहीं है, आज गाँव में भी बिजली है. टुडे दीज डेज इलेक्ट्रिसिटी इज इन द विलेजेज ऑल्सो. And nowadays you cannot say that in the villages and in the cities there is so much difference. No, आज जो गैप है, जो डिफरेंस है दोनों में, गांव में और शहर में, उसको बहुत हद तक बढ़ा जा रहा है. उस खाई को, अंतर की खाई को पाटा जा रहा है. लेकिन ये पोएम जिस समय लिखा गया था उस समय गांव में और शहर में बहुत का फ़र्क था. तो यह है कि उस समय गांव में लाइट नहीं था. What is the source of light in villages in the evening? Why is the nightingale mute in a town? So the nightingale is mute, मतलब चुप. Nightingale is mute in the town due to the harsh sound of the vehicles, the harsh artificial sounds, loud sound in the town. Due to that, the nightingale is mute, is silent. After that, we will come here in this question section. This is for your long answer. आप इसको 7-8 लाइन में लिखें. 7 and 8 lines will be sufficient. Why does the poet believe that God made the country? The God made the country is proved. The poet believes that God made the country because we find peace in the countryside. देहात में शांति मिलती है, इसलिए पोइट को लगता है कि भगवान ने अपने हाथ से देहात को बनाया होगा. Why does the poet believe that man made the town? The poet believes that the man made the town because there is no peace in the town. There is only crowd, although there is development. But all are sick and they need peace who are living in the towns. शहर में विकास है, प्रोग्रेस बहुत है, लेकिन शांति की कमी है, लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है. ये अंतर है. Why is life bitter? Life is bitter because it is always incomplete. Nobody is in this world who can say that his or her life is complete. The structure of life is in such a way that we all feel some need. So we have to feel the bitterness of life. जिंदगी की करवाहट यह है कि it is incomplete. So life is called incomplete, it is bitter, and it can be removed only by the help of health and virtue. Virtue, virtue. Virtue. What can make our life sweet? Our life can be made sweet by virtue and health. That is found in the company of nature, which is in the villages. What function do groves perform in a village? The groves perform the shade giving role in a village to the people who are tired and want shade. गांव में
जब थके हारे लोग शरण मांगते हैं, छाया खोजते हैं, तो उन्हें ग्रोव में पेड़ के नीचे छाया मिलती है। What are the birds scared of? Explain. Thrush bird and nightingale bird. These singing birds are scared in the cities, in the towns, because there is always loud sound due to vehicle, due to traffic, due to loud music. So there is a loud sound in the towns. So the singing birds of the villages are scared, and so they flee away from there. इसलिए ये बर्ड वहाँ से भाग जाते हैं। ये ग्रुप डिस्कशन है। यू विल डू दैट। विलेजेज आर नो लॉन्गर ब्यूटीफुल एंड पीसफुल। इस पर डिस्कस करना है तो अपना आइडिया आप तैयार करें। वैसे एग्ज़ाम के पहले इस सब पर भी मैं क्वेश्चन आंसर करूँगा। टाउन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। हाउ? विदाउट टाउन यू कैनॉट मेक प्रोग्रेस। गांव देहात क्या है? शांति है, लेकिन पिछड़ेपन का प्रतीक होता है। और शहर है, अशांति है, भीड़ है, कोलाहल है, फिर भी वह सिविलाइजेशन है, वह सभ्यता है। दैट इज द सिंबल ऑफ द प्रोग्रेस। वह विकास का प्रतीक है, वहाँ विकास होता है, इसीलिए वो शहर हो जाता है। गांव भी जब विकसित हो जाएगा तो वह शहर में तब्दील हो जाएगा। वहाँ लोगों की भीड़ हो जाएगी, वहाँ रोड बन जाएंगे, वहाँ गाड़ियाँ आने जाने लगेंगी। ये दोनों पहलू हैं। तो ये पहले वाले वीडियो में ही मैंने आपको शेयर किया था कि आपको ये नहीं सोचना है कि विच वन इज बेटर एंड विच वन इज बैड। नो, यू आर ओनली ए स्टूडेंट एंड यू हैव टू गैदर मोर एंड मोर वर्ड्स। आपको अपना लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग बनाना मेन एम है। जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता है अबाउट ऑल द टॉपिक्स, यू हैव टू गैदर दैट। यू हैव टू कलेक्ट आइडियाज़ ऑन विलेजेज, ऑन टाउन्स, एंड इट विल हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स। आप अभी फिलोसफर के रूप में मत सोचिए कि पोइट का कहना ये है और सही है कि गलत है। नो नो, यू हैव ओनली टू एक्सपैंड योर वोकैबुलरी, यू हैव टू स्ट्रेंथन योर लैंग्वेज पावर, यू हैव टू स्ट्रेंथन योर एक्सप्रेसिंग कैपेसिटी। ये बात है, ये सीखना है। दिस इज योर एम। तो माय डियर फ्रेंड्स ऑफ बिहार बोर्ड, डोंट वरी, आई एम विथ यू। आफ्टर दैट ये कंपोजिशन का क्वेश्चन है, तो आपको लेटर लिखना है इसमें अपने दोस्त के यहाँ। तो ये होगा इनफॉर्मल लेटर, ये फॉर्मल नहीं होगा, एप्लीकेशन नहीं होगा, लेटर लिखना है इसमें। लेटर लिखने के लिए मेरा एक आपको मेरे प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो यू विल फाइंड आउट देयर। लेटर राइटिंग पर भी मेरा टॉपिक है, वैसे भविष्य में भी मैं आपको बनाऊंगा। एंड इफ़ यू विल नीड समथिंग मोर यू कैन पुट इट इन माई कॉमेंट बॉक्स ऑल्सो। फ्रॉम देयर आई विल गेट योर नीड, गेट योर डिमांड एंड मेक वीडियोज अकॉर्डिंग टू दैट। सो आप वहाँ कमेंट बॉक्स का भी यूज करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ उसमें कमेंट बॉक्स में अपना डालें भी, और सब्सक्राइब की मात्रा को बढ़ाइए भाई, क्योंकि अभी बहुत होना बाकी है। और अपने दोस्तों को, जिस कोचिंग में पढ़ते हों, जिस स्कूल में पढ़ते हों, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, उन्हें प्रेरित करें कि सब्सक्राइब करें। इफ़ यू फाइंड इट गुड, अगर आपको लगता है कि आपका काम इससे हो सकता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और नहीं लगता है कि नहीं हो सकता है तो मत देखिए। ओके, आई होप दैट इट विल फुलफिल योर डिमांड। सो पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ के लिए भी मैं एक अलग से बनाऊंगा वीडियो। इसमें एक वीडियो पैराग्राफ के लिए एक सेपरेट वीडियो होगा आपको। तो पूरा विलेज पर क्या लिखना है, विलेज की खूबी उसमें लिखिए। वैसे मैं खुद बना करके आपको पूरा राइटिंग सेक्शन में लेटर के लिए, पैराग्राफ के लिए ये अलग से बनाऊंगा एक वीडियो। सो हैव पेशेंस फॉर दैट। इसमें छोटा छोटा जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और वर्ड स्टडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये ए बाउंड, तो ए बाउंड का स्पेलिंग गलत है, इसको सही करना है। तो क्या करना है, ABOUND, ठीक है ना। ये आपको होगा ABOUND, ये ND करेंगे, मतलब ABOUND बोल दिया ना। इसको अब लिख लीजिए। पेंसिव, पेंसिव मतलब PENS होगा, C हटा दीजिए और लिखिए PENSIVE, पेंसिव मतलब साइड। कंट्री है, इसका बहुत आसान है, आप लिख लीजिएगा COUNTRY, एक कंट्री। आइडियलनेस, तो IDE हटाइए, यहाँ L लिखिए, जैसे IDLE है ना, तो इसको IDLENESS।
सीधे एल को इधर कीजिए, ई को उधर कीजिए, आइडियलनेस, IDLENESS। सीडान, ये SEDAN करना है इसको, CEDAN नहीं, SEDAN। एक्लिप्स, ये ECLIPSE, ठीक है, एक्लिप्स, ECLIPSE, एक्लिप्स। आफ्टर दैट दिस क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विथ द वर्ड्स गिवन बिलो। इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है जो वर्ड दिया है उसे। जैसे ही थ्रीटेंड टू बीट मी, ये 1 है, ये थ्रीटेंड, ये आपको इसमें हम लोग लगा देंगे थ्रीटेंड 1, थ्रीटेंड 1, ठीक है, ये 1 आपको थ्रीटेंड हो गया। आफ्टर दैट विल यू नॉट लैंड यू राइज इन लाइफ, ये आपको चैरियोट्स, ये आपको 2। देन ये थर्ड क्वेश्चन, डिड यू टेस्ट, ये 3। देन क्वेश्चन नंबर 4, लाइक ए wanderer, ये 4, ये वाला 4। देन फिफ्थ क्वेश्चन is here, having failed in the examination he was in a pensive mood, ये 5 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें हम लोग करेंगे पेंसिव, ये 5, ठीक। देन 6, his words me and could not give a correct reply, his words offended me, ठीक है, his words offended me, offended, ये 5 आपको इसमें भरना है, offended कौन, तो ये 5। देन 6, his words offended हो गया। where the vehicles of gods and kings, ये chariots again, chariots were the vehicles of gods and kings, ये chariots were the vehicles of gods and kings, इसमें आपको भरना है chariots, chariot मतलब ये 7, तो 7 इसको करेंगे हम लोग 7, किसको, ये chariot 7 में भराएगा। अब इसको देखते हैं, the teacher was the teacher was, ये इसमें कीजिए confounded, the teacher was confounded means, ये क्वेश्चन नंबर आपको 8, नो, टीचर वाज कन्फाउंडेड, ये 8, और ये चैरियट जो पहले बार में एक बार और भर दिए थे आपको, वो गलत हो गया, इसमें करेंगे हम लोग, ये चैरियट कहाँ था, ही विल नॉट लेट यू राइज इन लाइफ, ये आइडियलनेस, ये इसमें आपको ये 2 नंबर, आइडियलनेस 2 में, ठीक है। तो चैरियट जो पहले भरा गया था 2 में बाई मिस्टेक, उसको हटा देंगे और ये सेकंड में भरेंगे आइडियलनेस। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करें, बार बार देखें, इसको बार बार देखने से याद होता है। अब ये नंबर ऑफ वर्ब्स आर मेड बाय सिंपली एडिंग en टू देम इन द एंड, ये वर्ब बन जाता है, इसमें सिर्फ en ऐड कर देने से, जैसे थ्रेट है, थ्रेट में अगर आप en लगा दीजिएगा, थ्रेटन हो गया, तो ये वर्ब हो गया, ये नाउन है, ये धमकी नाउन संज्ञा हो गई, और धमकी देना थ्रीटेन हो गया, ठीक ना। इसी तरह से आप ये देखिए, हेस्ट हेस्टेन, हालाइट लाइटेन, मैड मैडेन, स्ट्रेंथ स्ट्रेंदेन, ये वर्ब बन गया। तो ये en लगा करके
ये सब बनाया गया है वर्ब। एक्चुअली ये सब ये नाउन है, लाइट क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये इस en लगा करके बनाने का तरीका है, ये स्टडी वर्ड के अंतर्गत है। तो वर्ड स्टॉक कैसे करेंगे आप, इन दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर वर्ड power. So this is also very important for you. Then by using er in the end of the adjective we give it a comparative form. जैसे कि एक के लिए लिखना पड़ेगा कि दिस इज वेरी सॉफ्ट आइडिया एंड, तो देखिए ये दिस इज वेरी सॉफ्ट आइडिया, एक ही चीज़ के लिए नहीं है कि एक आइडिया यह बहुत सॉफ्ट आइडिया है, दिस इज ए वेरी सॉफ्ट आइडिया, लेकिन दिस आइडिया इज सॉफ्टर देन दैट। तो वहाँ हम लोग सॉफ्टर का लगाएंगे, मतलब ये कंपेरेटिव डिग्री का जो फॉर्म होता है, डिग्री में कंपेरेटिव डिग्री, वो दो में तुलना करने के लिए होता है। तो ये ER लगा करके भी कुछ का हम बनाते हैं, तो वो इसमें दिया गया है कि ये ER लगा करके कंपेरेटिव फॉर्म बना देते हैं। सॉफ्ट है ये पॉजिटिव डिग्री, और ER लगा करके बना दिए कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। तो ये सब दिया है आपको एग्जाम्पल, शार्प से शार्पर, थिन से थिनर, डार्क से डार्कर, मतलब दो में कंपेयर करेंगे तो इसका यूज करेंगे, और एक के लिए यूज करेंगे तो इसका करेंगे। जैसे इट इज ए सॉफ्ट आइडिया, दिस इज ए सॉफ्ट आइडिया हो गया। तो यहाँ पर कर दिए दिस आइडिया इज सॉफ्टर देन दैट, ओके। ये दिस टेबल इज थिक, यह मोटा टेबल है, एंड दिस टेबल इज थिकर देन दैट टेबल, ठीक है। दो के बीच में कंपेयर करेंगे तो वैसी मीनिंग के लिए सॉफ्टर या उस ER वाला फॉर्म का यूज करेंगे, वो कंपेरेटिव हो जाएगा। और एक के लिए यूज करेंगे तो ये यूज करेंगे, इसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। इसमें किसी से कंपेयर नहीं है, सीधे क्वालिटी बताया गया, इसमें है दो में कंपेयर है, ठीक। इसके लिए अलग से वीडियो भी बनेगा आपको, जिसको हम लोग करेंगे डिग्री का वीडियो भी बना करके मैं अपलोड करूँगा, प्लीज़ कीप ऑन व्यूइंग। देन नाउ मेक कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स बाय एडिंग ER टू द फॉलोइंग। इसको बनाना है आपको, तो कैसे बनाएंगे, तो ये है बिगड़, बिग में डबल G लिखिए, BIGGER बिगड़, SWEETER स्वीटर, TASTIER टेस्टियर, OLDER ओल्डर, आउटर OUTER आउटर, व्हाइट व्हाइटर, ब्लैक ब्लैकर, BLACKER ग्रीनर, GREENER स्मॉल स्मॉलर, ER ऐड कर दीजिए, लार्ज लार्जर, ER ई है ही तो इसलिए इसमें R ऐड होगा, हो गया। आफ्टर दैट दिस मैचिंग सेक्शन, वर्ड मीनिंग का मैचिंग है, इसको कर देते हैं। ये बहुत इजी है आपके लिए, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 310 का मीनिंग होता है एक्सप्रेस ए थ्रीट, फैटिक का होता है थकान, ये एलिमेंट मतलब नेचुरल क्वालिटी, ये स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त, स्प्लेंडर स्केयर्ड का मतलब फ्राइटेंड, तो स्प्लेंडर का ब्रिलियंस। सामने सामने मैंने कर दिया, इट विल हेल्प यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आफ्टर दैट ये है दो सेंटेंस है, सेंटेंस का ये दो पार्ट है, इसको ऐड करके एक बनाया गया है। जैसे गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ये आप लिख सकते हैं गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन, ये दो पार्ट हो गया। एक पार्ट हो गया गॉड मेड द कंट्री, वन सेंटेंस फुल स्टॉप दे सकते हैं, और उसके बाद में है मैन मेड द टाउन, ये दूसरा सेंटेंस है। दोनों को हमने जोड़ दिया तो कॉमा लगा दिया, एंड लगा दिया, ठीक है। जैसे वी वेंट टू द मार्केट कॉमा एंड वी ऑल्सो वेंट टू द सिनेमा, तो ये दो सेंटेंस को वी विल मेक हियर वन सेंटेंस बाय एडिंग बोथ दीज सेंटेंसेज। ये दो प्रकार के सेंटेंस हुए, इनको हमने ऐड करके एक सेंटेंस बनाया, तो ये कला है, ये आर्ट है, ये ग्रामर है। सो इसको हम लोग करेंगे आपके लिए, अभी करते हैं। जैसे ये देखिए, राजू रोट लेटर्स एंड कॉमा एंड ही पोस्टेड देम, मदर कुक्ड डिनर कॉमा एंड शी सर्व्ड इट, द टीचर टॉट द लेसन कॉमा एंड he asked us to do exercises, Rajan saw a puppy in the street comma and he brought it home, the boys were playing comma and they were making a noise, the king gave him land comma and the queen gave him jewels, he went to the circus comma and his friends went to the cinema, he will go to Delhi comma and they will go to Jaipur,
माई फादर इज इन द ड्राइंग रूम कॉमा एंड आई एम इन द स्टडी। इस प्रकार से कॉमा और एंड जोड़ करके दोनों सेंटेंस को एक बना दिया गया। अब एक्टिविटीज़ है तो आप ये करोगे, ये आपके लिए है स्पेशली, आप करो, कुछ भी करो सही होगा। बोल्डली लिखना है। कौन कहता है कि बिहार बोर्ड के बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते? अच्छी तरह से जानते हैं। आप अच्छे स्टूडेंट्स हो, देखते रहो, जानो, वीडियो मेरा बार बार देखो, जो नहीं है वो हो जाएगा। अब ये ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, इसको बनाते हैं। इस फल को मत खाओ, तो इस फल को मत खाओ, इसको इंग्लिश में लिखना है तो डोंट ईट, ठीक है, या डू नॉट ईट। तो डोंट ईट दिस फ्रूट, ठीक है, डोंट ईट दिस फ्रूट। डोंट DONT, ये कॉमा एपोस्ट्रोफी ऊपर दे करके बना दीजिए, नहीं, ये DON ऊपर ही कॉमा अतब T, डोंट। डू नॉट इसका मीनिंग है, तो डू नॉट ईट दिस फ्रूट, इसके लिए दिस करेंगे, इसके लिए दिस, फल के लिए फ्रूट, तो डोंट ईट दिस फ्रूट। धूप में मत खेलो, डोंट प्ले इन द सन। धूप के लिए कोई अंग्रेजी अलग से नहीं, सन, सो डोंट प्ले इन द सन, डोंट, डू नॉट प्ले इन द सन या डोंट प्ले इन द सन। ये थर्ड क्वेश्चन, बाजार शाम में जाओ, गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, गो टू द मार्केट, ठीक है, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ठीक है। तो ये बाजार शाम में मत जाओ, बाजार शाम में जाओ, सो गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। प्रतिदिन व्यायाम करो, डू द एक्सरसाइज डेली, ये डू द एक्सरसाइज डेली, डू DO द THE, एक्सरसाइज EXERCISE, डेली DAILY, डू द एक्सरसाइज डेली। नियमित रूप से अध्ययन करो, स्टडी कंटिन्यूअसली, स्टडी कंटिन्यूअसली, CONTI, स्टडी STUDY, स्टडी कंटिन्यूअसली, CONTINUOUSLY, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, रीड द रिलीजियस बुक्स, रीड द रिलीजियस, RELIGIOUS, रीड READ, रीड द रिलीजियस बुक्स। 7, कुछ समय छोटे भाई बहनों के साथ बिताओ, स्पेंड, SPEND, स्पेंड सम टाइम विथ योर ब्रदर्स एंड विथ योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर, छोटे भाई बहन मतलब यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो स्पेंड सम टाइम विथ योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। रोज अखबार पढ़ो, रीड द न्यूज़पेपर डेली, रीड द न्यूज़पेपर डेली। रोज कुछ नए अंग्रेजी के शब्द सीखो, लर्न सम न्यू इंग्लिश वर्ड्स डेली, लर्न सम न्यू इंग्लिश वर्ड्स डेली। कमरे की खिड़कियां खोल दो, कमरे की खिड़कियां खोल दो, ओपन दी विंडोज ऑफ द रूम, ओपन द विंडोज ऑफ द रूम। So my dear friend, I had completed this question answer, and some important question answer I will make in other videos that will help in your examination. So my request is to subscribe it please. अपने दोस्तों को भी बताइए, सब्सक्राइब करवाइए। नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन should be increased. It is not so much. I am in need of that. If it is good for you, ठीक है। अगर ये आपको लगता है कि अच्छा है तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और देखते रहिए मेरा वीडियो। थैंक यू फॉर व्यूइंग।